Hi guys, I'm Miss Empress. Welcome to November predictions, Diwali edition, Diwali blessings we are going to see in this reading. First, we are going to see some cards from Chinese fortune reading cards, and then tarot, and then we are going to have a pick a card from this deck, and we are going to use some fortune cookie cards. So you will have three options. Your first option will be Sita Devi, Queen of Chastity. Your second option will be Sri Ram, King of Dharma. And your third option will be Lakshmi Ji, Goddess of Fortune, as you all know. So, pick your card. If you feel like you can watch all these piles or you can watch more than one pile, it's up to you. Close your eyes, focus on your life, focus on your November especially, and choose a card. We are going to see November predictions and Diwali blessings this time. And as always, if you want a personal reading with me, DM me on Instagram, Ace Empress Tarot. Link is down below in description box. Timestamps will be in comment section. Let's start with pile number 1, that is Sita Devi. Okay. So pile number 1, if you chose this card, Sita Devi, Queen of Chastity, let's see your blessings. But first, let's read. I offer my reverence to Rama's beloved Sita, the source of world's creation, maintenance and destruction, the remover of all miseries, and the bringer of all auspiciousness. Okay. Fidelity in love, devotion to truth, penance and tolerance, power to improve upon oneself. Okay. Let's see what comes up. I will keep this so that we can remember what we are seeing. Let's see some cards from Chinese fortune reading cards to see what blessings are coming in November. For pile number 1, please. Freedom, that is Jiyu in Japanese. We have wish, number 26. And we have wisdom. 3 blessings. I feel like number 23, 26, 9 could be important for you. Also 9 is going to be the calculation of 2025. So that could be important, like November could have some events that could connect to 2025, something long term taking place. I'm also going to make a video on 2025's importance and what you need to be wary of and all later on. But I feel like for you, this could be a course that you have taken and you're trying to complete it, so it's a long term thing. Okay, let's read from the book what it says. It says learning new skills and awakening taking place, soulmate connections. Most of your life you have been searching for your life purpose. This card suggests that you are now very close to finding your purpose and meeting a lot of soulmates or like-minded people along the way. A person in authority will offer you sound advice which you should take extremely seriously. And this could happen in November, in upcoming days. Transformation is taking place all around you. This card is good, but it all depends on how you use it, how you use this time to gain knowledge, to gain wisdom. This card is also good for career and finances. I also feel like something that you wished for is coming true. Now आपकी wish क्या है ये तो आपको ही पता होगी, but I feel like in order to fulfill that wish you need to get out of the house or you need to get out of somewhere, you need to go out there and achieve your goals instead of sitting there and thinking कि चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट करेंगी. Because देखो, these people are
ऑन अ जर्नी, दे आर ट्रैवलिंग समवेयर, एंड फ्रीडम एंड विश, एंड उसके बाद विजडम. सो आप, आई थिंक लाइक यू हैव learned a lot up until now. You are knowledgeable, but you need to exercise your right to freedom, and you need to be free of people's opinion, be free of कहीं पे खुद को रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना है कि ये प्लेस मेरे लिए है, मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, दिस दैट रिलेशनशिप इज़ मेंट टू बी, सो आई स्टे देयर, एंड कोई ग्रोथ नहीं होगी अगर आप कहीं पे जाओगे नहीं, आप कहीं पे घूमोगे नहीं. ये इंडिकेशन दिस कैन बी लाइक यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी. उसमें से यू कैन गेट समथिंग दैट माइट गिव यू अ ब्लेसिंग जो आपको पता भी नहीं होगा, एंड आप बोलोगे मैं इस ट्रिप पे गया एंड आई अंडरस्टूड समथिंग अबाउट माई सेल्फ, या मुझे जो करना है लाइफ में मुझे वो समझ में आ गया. समथिंग माइट हैपन. कोई आपको कुछ बोलेगा कि इस कंपनी में तुम्हारे लिए जॉब है, तो लोगों से कनेक्ट करो, घूमने फिरने जाओ. अपने विश को मटीरियलाइज करने के लिए सिर्फ मैनिफेस्ट करना इज़ नॉट इनफ. टू मटीरियलाइज योर wish, your manifestation in real life, 3D life, you have to use your wisdom and practice your freedom. Okay, now I want to see something from the tarot deck. Let's see what comes up for you. Nine of Swords, the Sun, लवर्स. यहाँ पे बोला गया था सोलमेट कनेक्शंस. नो, दैट इज़ नॉट द लवर्स, दैट्स द वर्ल्ड. ओके, एस ऑफ पेंटाकल्स, बट ये लवर्स लग रहे हैं ना. फाइव ऑफ वॉन्ड्स. फाइव ऑफ वॉन्ड्स का विजडम के नीचे आना इज़ लाइक द लेसन्स यू हैव लर्नड बाय गोइंग थ्रू टफ सिचुएशंस दैट यू हैव टू यूज़. ओके, नवंबर में उसका फुल यूज़ होने वाला है. आपको पता भी नहीं होगा ऐसे सिचुएशन आएगी, एंड यू विल हैव टू यूज़ योर नॉलेज, योर विजडम, योर एक्सपीरियंस विल हेल्प यू. द वर्ल्ड का कार्ड आया एंड ट्रैवलिंग बोला गया था. सो यू माइट वॉन्ट टू ट्रैवल, और देर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल. डेफिनेटली यू शुड गो समवेयर इन नवंबर. वी हैव एस ऑफ कॉइंस. दिस कैन शो न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू अपॉर्चुनिटी. इट कैन बी विश फुलफिलमेंट. ओके, आई डोंट नो ये नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, बट शी लुक्स सिमिलर टू सीता. देखा आपने, है ना, वो वही कर रही है. इसकी स्टोरी है इस डेक में. लेट मी चेक क्या स्टोरी है. सो इस कार्ड को बताया गया है कि एंजाइटी होना, फियर्स होना, उनको लेके बैठना, एंड उनकी वजह से ट्रॉमेटाइज होना. सो आई फील लाइक अगर आप सोच रहे हो कि आई हैव टू गो समवेयर, मैं कैसे करूँ, कैसे जाऊँ, मुझे दूसरों को किसी को संभालना है, मम्मी की हेल्थ देखनी है, ऐसा कुछ है. यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये लाइफ आपकी है, वो आपको ही जीनी है. अगर आपको कुछ हासिल करना है, यू हैव टू गो आउटसाइड एंड क्लेम दैट. सन कार्ड आया है. ये पर्सन भी एक बोट पे है, ही इज़ ट्रैवलिंग समवेयर. ठीक है. ये टॉवर कार्ड आया. आई ऑलवेज सी दिस कार्ड एज रपंजल. रपंजल ऑलवेज स्टेड इन दैट कैसल, एंड वन डे शी एस्केप्ड फ्रॉम हर क्रूअल मदर. ही अगेन ये मदर का रेफरेंस है. आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली आपकी मदर क्रूअल है, बट मे बी ये टाइम है कि आप बाहर जाओ एंड यू फाइंड योर ओन ब्लेसिंग्स, योर ओन वर्ल्ड. कहीं ना कहीं ये है. लेट्स सी समथिंग फ्रॉम फॉर्चून कुकीज. रपंजल भी हमेशा कैसल के बाहर देखती थी और सोचती थी कि बाहर की दुनिया कैसी होगी एंड क्या. उसकी मॉम उसको हमेशा एक फियर में रखती थी कि डोंट डू दिस, बाहर अजीब लोग हैं, दुनिया अच्छी नहीं है. आई नो दुनिया काफ़ी अच्छी नहीं है, बट दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप अपना प्रोग्रेस ही रोको एंड
घर में ही बैठ जाओ कह दो के ओके. Care required. Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time. It could be that आपसे कोई मिस्टेक्स हुए हैं इन द पास्ट एंड आपको लगता है वो रिपीट होंगे, बट इसके वजह से आप ट्राई करना नहीं छोड़ सकते. करेक्ट. सी व्हेन अ बच्चा ट्राइज टू वॉक, वो गिरता भी है, लेकिन क्या हम उसको बोलते हैं अभी तू वॉक मत कर? नहीं, उसको चलना तो है. मैनिफेस्टेशंस. एक सेकंड. अ बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू, मतलब अबंडेंस से भरा, प्रॉस्पेरिटी से भरा, है ना. योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज. देखिए यहाँ पर है ये विश कार्ड, इसके नीचे ही मैं रख रही हूँ. आपकी आंखों के सामने, मैंने कहा ना आप कहीं जाओगे या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा एंड यू विल यूज़ योर विजडम, तो आपकी विश फुलफिल होगी. मेजर लाइफ चेंज. टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय. मैंने कहा कि आप ट्रैवल करो. जस्ट अ सेकेंड. आप ट्रैवल करो. आप, अरे फोकस, हाँ. लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस. सी, ट्रबल फ्री. इस टाइम जो आपका मैनिफेस्टेशन आएगा, इस टाइम जो दैट यू विल गेट an opportunity of some kind, it will be trouble free. Okay, so don't worry, don't focus on what is not working out, what has not worked out in the past. Try to be positive and focus on positive things. I feel like ये जो तपस्या हो रही है यहाँ पर, ये आपकी तपस्या है. आपने तपस्या करी है और आपको फल मिलेगा. एज वॉट नवंबर इज ट्राइंग टू से टू यू. ओके. वर्ल्ड कार्ड घूमने की अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है, किसी तरीके का कंप्लीशन भी दिखा सकता है, दैट योर साइकिल्स हैव कंप्लीटेड. ओके. ऐसा कोई साइकिल जिससे आप जा रहे थे एंड आज ये फोकस ही नहीं कर रहा है. क्यों क्यों? किसी तरीके का साइकिल ख़त्म हो सकता है आपके लाइफ में एंड इट कैन लीड टू अ न्यू बिगनिंग, बिकॉज एस ऑफ पेंटाकल्स इज नंबर 1 कार्ड ऑफ पेंटाकल सूट. So aces always show new beginnings, new ventures, new projects, um, any new investment. Okay, this all could happen in November. एंड आपकी दिवाली ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है फ्रीडम. आप अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करो. आप अपनी विश फुलफिलमेंट को खुद पाने की क्षमता रखते हैं. आप अपने विजडम को यूज़ करो. I hope you like this reading. Please like, share, subscribe and comment and wait for my next video. Thank you. Hi pile number 2, if you chose Shri Ram ka card, welcome. Let's read. I repeatedly bow down to the pleasing form of Ram, who destroys all dangers and bestows all benedictions. Fidelity in marriage, obedience as virtue, security, name and status, adherence to truth, keeping one's word. Yeah, राम इज़ फेमस फॉर दैट. मैं ये कार्ड को ऐसे ही रखूँगी ताकि हमें थोड़े कीवर्ड्स दिखते रहे. अब हम देखेंगे चाइनीज़ ओरेकल डेक से आपको क्या मिलता है. 3 blessings coming for pile number 2 please in November. 3 blessings they are getting in November. Transformation. Number 19 could be important. Okay, weird. Mera speaker has given up. So let's see. Second thing that is coming for you, paradise. Paradise. And second, a third blessing coming for you. 3 blessings को देखते हैं नवंबर में. Hope. ये बहुत ही अच्छा कार्ड है. इफ़ आई वॉन्ट टू गिव यू अ रेमेडी आई से दैट बर्न अ रेड कैंडल. जैसे यहाँ पर है, एक रेड कैंडल को लीजिए, आपके विशेस उस पर बोलिए एंड उसको बर्न कीजिए. ओके, आई वॉन्ट टू रीड द
transformation card for you, and it says this card indicates that you will reach your personal goals or plans by taking up a course of study or learning new skills. Whatever your course or training involves, know that it will help with personal growth and transformation. आपके सारे कार्ड्स आर अबाउट होप. होपिंग, विशिंग, ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग आप बहुत करते होंगे. सो आई फील लाइक आपके जो कार्ड्स है उसके हिसाब से आई कैन गिव यू अ रेमेडी इज दैट वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, लाइक फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपको कोई पर्सन चाहिए उस पर्सन की फ़ोटो आप अपने सामने लगाइए. लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर की एक फ़ोटो आपके सामने लगाइए. आप खुद वो कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम पहन के आप अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हो. अगर आप डॉक्टर नहीं भी हो बट आप बनना चाहते हो, वो आप फ़ोटो लगाओ. वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके मैनिफेस्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, करियर के लिए ये कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं. एंड ब्लेसिंग आपके लाइफ में ये आ रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. एंड जो आपके होप्स एंड विशेस है ना, उसको थोड़ा डे ड्रीमिंग आपको बंद करना पड़ेगा एंड थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा टूवर्ड्स योर गोल्स इज़ व्हाट आई से. लेट मी सी टैरो गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2. एम्परर. सी, एम्परर आपको बनना है ना. कोई भी, नो बडी बिकम्स एन एम्परर ऐसे एक दिन में. सो इन ऑर्डर टू बिकम एन एम्परर you have to make efforts, that is for sure. If you want a castle, if you want your empire, very like coincidence देखो, राम इज एन एम्परर एंड ये आपको एम्परर का कार्ड है. ट्रेडिशनल डेक में जो एम्परर होता है वो भी एक थ्रोन पे बैठा हुआ होता है. सो इफ यू वांट टू बी एन एम्परर, इफ यू वांट टू बी इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी जहाँ पे आपके हाथों में चीज़ें हो, आपके हाथों में अथॉरिटी हो, यू हैव टू मेक द राइट काइंड ऑफ एफर्ट्स. एंड इसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ज़रूर. ठीक है, एम्परर काफ़ी पावरफुल काम है. सो इफ़ यू ऑलरेडी वर्किंग इन एंड यू हैव अ करियर, इट शोज दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गोइंग टू इंक्रीज. So you might be given a role where you have to work more, where you have to handle more tasks. Okay, Ace of Swords, he has a hand in his sword. Ace of Swords, Ace of Swords is also a good card for education. Like इसमें बोला गया था take up a new educational course or something. Ace of Swords can be clarity. हमें क्या चाहिए, उसकी clarity and breakthrough of confusion. So if you're thinking about others a lot, like बाकी के लोग आपको क्या बोल रहे हैं, उसको थोड़ा साइड में करना पड़ेगा. सुनो सबकी बट करो वही जो सही है. ओके, यूज योर विजडम. वी नो दैट राम, लॉर्ड राम वॉज पीपल्स पर्सन, लाइक ही यूज टू लिसन टू पीपल. एंड उसके वजह से उन्होंने एक बड़ी मिस्टेक भी की. बट वो लोगों के बारे में बहुत सोचते थे एंड लोगों के बारे में, लोगों का बहुत सुनते थे. तो सुनो सबकी बट इफ़ यू आर अ किंग, टेक वाइज डिसीजंस. वाइज डिसीजंस लेना आपका काम है आपके लाइफ में. करेक्ट. यू हैव द हाई प्रीस्टेस. सो अपने इनर वॉइस की सुनो. ठीक है, सिर्फ अपने रंग महल में मत रहो, अपने इनर वॉइस की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो. 4 of coins. Protect what is yours. If it's your dream, protect it. If it's your people, protect them. Okay, राम बिल्कुल वैसे ही थे, अपने लोगों के बारे में बहुत सोचते थे. 3 of cups. This can show wish fulfillment. This can show happier times coming for you in November. That's why I told you, वो रेमेडी आप कीजिए, रेड कैंडल लगाइए, उस पर अपनी विशेस बोलिए एंड उसको बर्न कीजिए. ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है. सोर्ड्स कार्ड अगेन एक किंग आ गया. बहुत ही पावरफुल पोजीशन में आप अपने लाइफ में आने वाले हो, जहाँ पे आप डिसीजंस लोगे.
इसीलिए आपका वाइज डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अडहेरेंस टू ट्रूथ लिखा है, कीपिंग वन वर्ड। इफ़ यू हैव प्रॉमिस समथिंग टू समवन, फुलफिल दैट प्रॉमिस, ओके। फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, फॉलो द पाथ, राइचियस पाथ, फॉलो एक अच्छा काम कीजिए, ओके। फिडेलिटी इन मैरिज भी लिखा है, सो अगर आप इनफिडेलिटी कर रहे हैं उससे आप दूर रहें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। प्रोटेक्ट योर पीपल, अपने लोगों से झूठ मत बोलिए। लेट्स सी फॉर्चून कुकी। फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, others could blossom and become stronger. This could be about friendships also. इसलिए मैंने कहा लोगों को झूठ मत बोलिए, लोगों से सच बात कीजिए, उन्हें विजडम दीजिए। Reinvent yourself, transformation is taking place, enjoy a new lease of life. Zoom ये नहीं हो रहा फोकस, ओके। You need to bring some changes in your life. अगर आपको लगता है कि आपको एम्परर बनना है, सो आप राम को देखिए, उसके जैसे आप बनिए। पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड मेजर परचेस इज वर्थ मेकिंग। हो सकता है आने वाले टाइम में आप कोई मेजर परचेस करो, एंड ये आपकी लाइफ की बड़ी परचेस हो सकती है, उसमें भी आप एक वाइज डिसीजन लो, ऐसा कहा जा रहा है। आई वॉन्ट टू रीड द होप कार्ड फॉर यू। होप कार्ड में लिखा है, होप इज एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू एम्ब्रेस नाउ। You have gained a lot of wisdom through life's recent experiences and are ready to embrace your new chapter. You will be more adaptable to change and more decisive than before. Yes, wise decisions, मैंने कहा था। Expansion and personal growth is likely because आपको आया है reinvent yourself. Personal growth, कोई कैरेक्टर में चेंज, पर्सनालिटी में चेंज, किसी से इन्फ्लुएंस होना। जैसे मैंने कहा लॉर्ड राम के बारे में आप पढ़ो, उनके जैसे बनो। करियर और फाइनेंस में लिखा है कि अ लकियर पीरियड इज इमर्जिंग, हाईली क्रिएटिव टाइम। बहुत से ऐसे डिसीजंस आप लेंगे दैट विल लीड यू टू सक्सेस, दैट विल लीड यू टू अ लाइफ जहाँ पे ये लाइफ आपने बनाई है, ठीक है। ये किसी और ने नहीं बनाई है। हाँ, लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे, बट अगर आप आपकी लाइफ बनाते हैं तो आप सेल्फ मेड कहलाते हैं। ये काफ़ी एंटरप्रेन्योर बिजनेस पर्सन टाइप फाइल लग रही है मुझे। आई फील लाइक आप मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हो, बट आप ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हो, ठीक है। दैट्स नॉट एन इशू। सो आई होप you like this reading. Please like, share, subscribe and comment and wait for my next video. Thank you. लक्ष्मी जी का कार्ड, थर्ड पाइल आपने चूज की। दिस इज योर रीडिंग, वेलकम पाइल 3। पहले तो हम ये कार्ड पढ़ लेते हैं। ओ महालक्ष्मी, bestower of success and intelligence, worldly enjoyment and liberation, I bow down to you. O goddess whose form is the mystic syllable, improved social status, increased wealth and luxuries, career promotion or acknowledgement, good and faithful marriage partner, especially a wife. मैं इसको ऐसे ही रखूँगी ताकि हमें उन वर्ड्स का सहारा लेके रीडिंग्स करने में आसानी हो और कोई रिलेशन बने। लेट्स सी 3 ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। सम ब्लेसिंग्स इन नवंबर। होप, सन, ये कार्ड सेकंड पाइल में भी था, अगर आपको लगा कि सेकंड पाइल देखनी है देख लो। होप, सन एंड न्यू बिगनिंग्स। सन इज अ वेरी पावरफुल कार्ड। आप कोई भी डेक देख लो, सन कभी भी बुरा कार्ड नहीं होता है। सन बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। इट शोज सक्सेस, इट शोज न्यू बिगनिंग्स, इट शोज happiness. It's the bestower of happiness, okay? Let's see. Number 1, 28 and 32
या फिर इनके कैलकुलेशंस कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नंबर वन सन का भी नंबर होता है, बिकॉज ही इज़ द किंग, ही इज़ द नंबर वन इन स्काई। ओके, तो हो सकता है नवंबर में आपके लिए नंबर वन काफ़ी लकी हो। बिकॉज ऑफ दिस कार्ड आई कैन फील लाइक फ्रेश न्यू बिगनिंग्स आ सकती है। फ्रेश न्यू कार, ब्रांड न्यू कार आप ले सकते हो, या आपकी लाइफ में कोई बच्चा आने वाला है, अ किड। इस कार्ड में लिखा गया है दैट पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल और न्यू बिगनिंग्स आ सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ इन फील्ड्स में। यहाँ पे लिखा है रिसेंटली यू हैव हैड अ पीरियड वेयर नथिंग फेल्ट स्टेबल एंड यू मे हैव फेल्ट इमोशनल और वल्नरेबल. You may have just completed a time of endings and now is the time to look for that which will replace what you have lost. Something that you have lost, ऐसा कुछ जो आपकी लाइफ से चला गया हो, that आपको नई फॉर्म में मिल सकता है, रिटर्न आ सकता है आपके लाइफ में. This card indicates that taking risk will pay off. Okay, ये टिप बहुत अच्छी है. Declutter your computer or phone by deleting old emails, junk mail, organizing your folders, clean up your workspace. Try to ensure that at least one third of your desk is clear of paper, books, general clutter. सब कुछ आपको एक declutter करना है. You know how we clean our house दिवाली के टाइम से पहले, क्योंकि we want to throw away and let go of old things. पुरानी चीज़ें, खराब चीज़ें, बिगड़ी हुई चीज़ें, बंद पड़ी हुई चीज़ें. कोई वॉच है जो बंद पड़ा है, उसको रिपेयर करा लो, उसको नहीं तो फेंक दो, ठीक है. कोई शूज़ है, एंड नई चीज़ें आने के लिए हम वेलकम करते हैं, राइट. सो इसलिए वी वांट दैट स्पेस. लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हाट्स कमिंग फॉर यू न्यू एंड इन नवंबर. ब्लेसिंग्स बी. 8 of Swords, 4 of Wands. ये मैरिज कार्ड है, सो डेफिनेटली मैरिज, किसी के साथ जुड़ना, कमिटमेंट करना, बेबी का बॉर्न होना. ओके, डेथ, पेज ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, वन मोर कार्ड आई वांट. 10 ऑफ कप्स. आई फील लाइक विद द डेथ कार्ड इस न्यू बिगनिंग से आपको डरना नहीं है. फॉर सम रीजन आई फील लाइक देयर इज अ फियर, एंड आपको डरना नहीं है. यू डोंट हैव टू फियर दिस न्यू बिगनिंग. यहाँ पर भी एक बेबी है, देखा. You have to let go of your past. You have to let go of your inhibitions. जो भी fear है, anxiety है, let go of it. New beginnings are coming. आपके manifestations true हो रहे हैं. I want to see fortune cookie deck में से क्या आता है. Improved social status है, यहाँ पर मेरा ध्यान गया. You could marry into a house जिनका social status आपसे अच्छा हो. ओके, या मैरिज के बाद योर सोशल स्टेटस एंड योर फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ. बिकॉज इट सेज इंक्रीज्ड वेल्थ एंड लग्जरीज. आपको सक्सेस का कार्ड भी आया है, होप का कार्ड आया है. सो योर विशेस आर फाइनली कमिंग ट्रू, ऐसा भी हो सकता है. किसी के साथ बात नहीं बन रही थी, अब वो हो जाएगी. ओ माई गॉड, लव, लव इज इन द एयर. जस्ट अ सेकेंड. आज फोकस क्यों नहीं है. लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप्स टू नेक्स्ट लेवल. आई टोल्ड यू, किसी के साथ बात नहीं बन रही थी, अब बन जाएगी. पहले कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, अब वो क्लियर हो जाएंगे एंड एक कनेक्शन बनेगा. सोसाइटी, से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस coming your way. Excellent networking opportunities and new love interest for singles will be the result. I told you.
If you get any invitations, please accept it. If you're going for a party, celebration, दिवाली celebration, किसी के घर में पूजा, कुछ भी, किसी का बेबी हुआ है, उनका सेलिब्रेशन है, उसमें आप ज़रूर जाइए. उसमें बहुत एक पावन, बहुत प्योर सी एनर्जी होने वाली है, एंड दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू इन गुड वेज. यू नो, अच्छी जगह जहाँ हम मंदिर में जाते हैं, हमें अच्छी वाइब्रेशंस मिलती है, हमारा वाइब्रेशन अच्छा होता है. assert yourself, go for what you want, the time is right for your soulmate connections. birth of a ये तो थर्ड कंफर्मेशन है. बर्थ ऑफ अ चाइल्ड होने के बहुत कंफर्मेशंस है. गुड न्यूज़ आपके घर में आ सकती है. मिठाई मेरे घर पहुंचनी चाहिए. मुझे मिठाई चाहिए. ये खुशखबरी अगर आपके घर में है, आने वाली है, आपको पता चले कि आप कंसीव करने वाले हो, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड है, छोटू सा, एकदम स्पैरो जैसा. दिस कैन इंडिकेट दैट एक छोटी सी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है. ये बेबी की भी हो सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कहीं फॉरेन जाना हो, करियर में प्रमोशन एंड एक्नॉलेजमेंट. दैट मीन्स योर वर्क विल बी एक्नॉलेज बाय द हायर अप्स. ओके, one more card I'll take. I didn't take an extra card for any pile, but for you I'll take. Oh my god, good and faithful marriage partner, especially a wife. A marriage partner who is loyal, faithful, honest, pure intentions के साथ. सनशाइन. ओ माई गॉड, को इंसिडेंस ऐसे है इस पाइल में दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू. सनशाइन, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स. सो जो आपकी बातें होने वाली है बिजनेस में, करियर में, पार्टनर के साथ, कम्युनिकेशन इतना अच्छा, इतना स्मूथ सेलिंग, इतना फ्री फ्लोइंग होने वाला है दैट इट्स गोइंग टू, आप भूल जाओगे पास्ट में क्या हुआ. ये जो पास्ट के आपके डीमंस है ना, उनको आप भूल जाओगे. आप बोलोगे कौन सा पास्ट, याद ही नहीं मुझे. इतनी खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ मैं. आई डोंट इवन रिमेंबर क्या था वो. इस पे मैं इस कार्ड को रख रही हूँ बिकॉज न्यू थिंग्स. आई थिंक इस कार्ड में these three entities are coming to bless this couple. ऐसा कुछ स्टोरी है इसमें. ओके, आई फील लाइक यू शुड स्टार्ट वेयरिंग मोर रेड. सारी रीडिंग में इतना रेड कलर है. यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, कार्ड्स भी रेड है, उनका थीम ही रेड है. यहाँ पे सफायरी नेचर है नाइट का. एट ऑफ स्वॉर्ड्स shows that you have been hurt in the past. I can see that. But अभी जो आपको मिलने वाला है वो अच्छा है, वो पावरफुल है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइन टाइमिंग है उसमें. लोग कहते हैं डिवाइन टाइमिंग कब होगी, कब होगी, अब होगी. तो होगी तो उसको आप एक्सेप्ट करो. कोई आपको पर्सन मिल सकता है जिनके नेम में मनी हो, जैसे लक्ष्मी जी की तरह, जिनके नेम का मीनिंग भी मनी हो. वो आपकी वाइफ या वो आपका स्पाउस बन सकता है. ओके, उनके नेम का मीनिंग मनी हो सकता है. ओके, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पाइल आउट ऑफ ऑल ऑफ देम. एंड प्लीज like, share, subscribe and comment, and wait for my next video.